آج کا جو مجلس کا آغاز ہے اس میں سب سے پہلے تو خوشخبری ہے. ہمارے ڈاکٹر منصور حفیظ بھٹی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر دلدار صاحب فیصل آباد والے اور سید شیخ نصیر صاحب، ان سب کی مشترکہ محنت ماشاءاللہ بہت لمبے عرصے سے جو کر رہے تھے، اور ان کے اور بھی بہت سے مددگار تھے. کوئی معلومات جرمنی سے لی، کچھ غانا سے ملی، تو اس کے نتیجے میں اب ہماری وہ ہومیوپیتھک مینوفیکچرنگ فرم اسٹیبلش ہو گئی ہے باقاعدہ. انگلینڈ کے تمام قوانین کے منہ پورے کرنے کے بعد، اور یہ بڑی لمبی خط و کتابت ان کو کرنی پڑی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کی تسلیاں کرانے کے بعد، انکم ٹیکس کے تقاضے، امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین، سب باتیں جو بہت ہی محنت طلب اور سردردی کا موجب بھی بنی رہیں. اور پھر نمونے ہماری مینوفیکچر کے کس قسم کی شیشیاں ہوں گی، کیا بنایا جائے گا، سارے مراحل سے گزرے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہمت کے ساتھ. اور بالآخر وہ مشین کل یہاں پہنچ کے ڈلیور ہو گئی ہے، اور جو ہم نے جگہ اس کے لیے مقرر کی ہے وہاں سب سامان پہنچ گیا. بڑی خوشخبری کی بات ہے ماشاءاللہ. اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم یہاں خود اپنے طور پر کیا کیا تیار کر سکتے ہیں. پہلے تو جو گلوبلز ہیں ہمارے گولیاں، گلوبلز یا یونیورسلز؟ گلوبلز کہتے ہیں ان کو جو گولیاں گلوبیول. ہاں جی جی، ان کے بنانے کا ایک پلانٹ ہے جی. دوسرے ہے پلاسٹک. کتنے سائز کے گلوبیولز بنائے، کتنے؟ اس میں حضور ڈفرینٹ قسم کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں نا، 20 30 40 50. کون کون سے نمبرز کے وہ بنا سکتے ہیں گلوبیولز؟ ابھی مجھے علم نہیں تھی، وہ مشین چونکہ انہوں نے پیک کے چھاننی آگے ذریعے بغیر علم کے. خیر یہ تفصیل مل جائے گی کہ ایسے کوئی بھی بن جائے ہمارے لیے وہ بھی بہت کافی ہوگا. جی فکر نہ کریں آپ. ہاں ٹھیک ہے جی. آگے اس کے بعد حضور پلاسٹک کی شیشیاں جو جن میں دوائیاں ڈالتے ہیں جی، ایک وہ پلانٹ ہے جی. وہ پلانٹ ہے جی جی. اس میں 4 قسم کی شیشیاں بنیں گی جی. اور سائز کتنے ہوں گے؟ 4 سائز ہیں اس میں. اور قسم ایک ہی ہے؟ نہیں جی، 2 قسمیں. 3 تو کھلے منہ والی گولیوں سے، اور ایک ہے مدر ٹنچر سے ڈراپر والی. ڈراپر والی جی. اچھا. 2 قسم. اور 3 کھلے منہ والی پیچ والے ڈھکنے؟ پیچ والے ڈھکنے جی، ڈفرینٹ سائز کے جی. پھر حضور اس کے ساتھ پوٹنٹائزر ہے جی، آٹومیٹک جی دوائیاں بنانے والا. وہ کہاں سے کہاں تک پوٹنٹائز کر دیتا ہے؟ وہ جی 1 سے لے کے CM تک جی، سارا آٹومیٹک ہے فلی. 1 لاکھ تک؟ جی جی. اچھا. اور وہ کتنی دیر میں بناتا ہے CM؟ یہ نہیں پتا. لکھا تھا ہے انہوں نے ضرور، کہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح کتنی دیر میں کتنی بناتا ہے. انہوں نے تفصیل لکھا ہوگا. جی جی. مگر جس چیز پہ چاہیں آپ فکس کر دیں جی، فکس کر دیتے ہیں جی. اس کے بعد وہ آٹومیٹک ہے جی جی. اس کا دھڑکنا خود بخود. جی جی. اور جب وہ بن جائے گا، کام مکمل ہو جائے گا، تو پھر وہ وہاں کھڑا ہو کے انتظار کرے گا آپ کے حروف کا. جی جی جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضور بایو کیمکس جو، اور یہ ڈسٹل واٹر سے بنے گا جی. ڈسٹل واٹر کا پلانٹ بھی ساتھ ہے جی. اپنا ہی ہم پیوریفائی کریں گے واٹر. اپنا کریں گے، یہاں تو بہت مہنگا ملتا ہے. جی جی. پورا وہ باقاعدہ تسلیم شدہ معیار کا پلانٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو وہاں خود وہ یوز کرتے ہیں حضور، اسی قسم کا بنا کے ہمارے لیے بھجوایا ہے. نہیں، جو تعریف ہے ڈسٹل واٹر کی اس کے مطابق بنایا گیا ہے نا. جی. اچھا. جی جی. اس کی جو طہارت، اس کی پاکیزگی ہے پانی کی، جی، ان معیاروں کے مطابق ہے جو انٹرنیشنلی دنیا میں منظور شدہ ہیں. یہ پوائنٹ ہے جو میں پوچھ رہا ہوں. اس پہ میری بات اپنے اعتماد کی حد تک جی معاملہ رکھا ہے بس. ٹھیک ہے. یہ وہ ان کی بنتی ہے تو آپ کی بھی بن جائیں گی، یہ مطلب ہے نا. جی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہی یوز کرتے ہیں وہ چیز کو جی. پھر حضور بایو کیمکس دوائیں بنانے کا پلانٹ ہے جی، ایک 6X میں جو بایو کیمک. جی جی. 6X میں اور 12X میں.
6x से 12x तक या 6x में और 12x में? 6x से 12x तक बना सकते हैं जी, लेकिन मोस्टली 6x और 1x से नहीं बना सकते? बना सकते हैं जी। तो फिर ये कहें ना, अच्छा जी 1x से लेकर 12x तक जी बनाने का इंतजाम है। जी, ठीक, 12 टिश्यूज को भी 12 टिश्यू में। जी जी। और उसके अलावा उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी बनाएंगे वो? हजूर मैं ले आऊँ, मेरे पास सारा है जी, नीचे नीचे पड़ा है सारा जो उन्होंने भेजा है, कितनी कैपेसिटी में कितनी वो बनाएंगे। नहीं अब छोड़ दें इसको, हमें पता तो लग ही जाएगा जी। मैं वैसे इस वक्त तो बता रहा हूँ ना सब दुनिया को कि हम खुदा तआला के फजल से अब क्या क्या कर सकेंगे, यहाँ ये चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। जी जबकि अगर बाज़ार से ख़रीदें ये चीज़ें तो बेहद महंगी हैं। हम इंशाल्लाह सारे यूरोप और अमेरिका की सप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, जी जी लेकिन अपनी दवाएं मंगवाना ये मंगवाने वालों का काम है। इस सरदर्दी में हम नहीं पड़ सकते। पहले बेशुमार काम ऐसे यहाँ सहेड़े गए हैं कि उसके लिए हमारे पास पूरा स्टाफ ही नहीं मुहैया हो रहा। जितना है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, इसलिए जिनकी ज़रूरत है वो भी तो हिस्सा डालें। ये इंतज़ाम हर मंगवाने वाले का फ़र्ज़ होगा कि अपने मुल्क की ज़रूरत के पेश नज़र अपने इंतज़ाम में हमसे ये चीज़ें हासिल करें और उससे पहले हमें लिख कर ऑर्डर दिया करें। कीमत उतनी ही होगी जो मुनासिब खर्च की कीमत है, और उसके अलावा कुछ परसेंट उसमें मामूली सा इजाफा होगा मुफ्त तकसीम की खातिर, जो हमारी जारी रहती है हमेशा। इस वजह से इसको खुद कफील बनाने के लिए और ये भी पेश नज़र रखा जाएगा कि कुछ अमला हमें रखना पड़ेगा अब जी जो मेहनत करे यहाँ बैठकर, और जो लेबर का काम है वो पूरा करे। तो वो सब खर्च डालने के बावजूद भी मेरा ख्याल है बाज़ार में जो कीमतें हैं उससे 10वें हिस्से बहुत कम जी हजूर। यहाँ जो सस्ती तरीन सारा ना बता दें। नहीं बता सकते नहीं, मैं बाजार की कीमत बता रहा हूँ जी। बाजार की कीमत जो है जो कम से कम है हजूर, जो फ्रांस से मिलती है वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ना बताएं। 10वें हिस्से की गारंटी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी ज़रूर। हाँ? जी जी पक्की बात? हाँ जी बस फिर ठीक है, गारंटी नहीं मगर उम्मीद दिलाता हूँ मैं हाँ जी। कि आप जो 10 पाउंड में चीज़ खरीदते हैं 1 पाउंड में यहाँ से इंशाल्लाह मुहैया हो जाएगी। इंशाल्लाह। और अगर और कम हो सका तो फिर और भी कम करेंगे। बेहतर जी। ठीक है ना? जी बेहतर जी। और बस यही है जी। बाकी सब ममालिक जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनका फ़र्ज़ है अपने अपने उमरा को या इस काम के लिए जो इंतज़ामिया बनाई गई है उसको मुतले कर दें कि आइंदा कुछ अरसे के अंदर तमाम होम्योपैथिक अद्विया यहाँ से मुहैया हो सकती हैं। अगर स्पेशल ऑर्डर पे कोई हाई पोटेंसी बनवानी हो तो उसका एक शीशी का खर्च बहुत उठता है जी। इसलिए इस आम कानून से वो मुस्तस्ना बात है। जब एक दफ़ा हमें एक पोटेंसी मिल जाए फिर उससे जितनी मर्जी बना लें वो मामूली खर्च है बिल्कुल, लेकिन पोटेंसी बनाना, इस मशीन का बिजली के ऊपर काम करना और मुसलसल 1 लाख तक वो मवाद को पोटेंसी बना के फेंकना और एक हिस्सा रख लेना, सिर्फ एक कतरा रखना ताकि उससे ऊंची पोटेंसी बन जाए, ये काफ़ी खर्च चाहता है। और इसके लिए अगर स्पेशल पोटेंसी का ऑर्डर हो तो वो फिर मेरा ख्याल है काफ़ी महंगा पड़ेगा। बाजार की कीमत पे मिल जाएगी 1 लाख में। जी कितने की मिलती है आपको एक 2 ड्राम की शीशी? 4.5 पाउंड की। 1 लाख की? जी हाँ, तो 4.5 पाउंड में आप दे सकेंगे ये स्पेशल ऑर्डर वाली? स्पेशल ऑर्डर वाली तो बहुत ऊंची मांगते हैं वो। अगर आप ऑर्डर पे कंपनियों से बनवाएं जी जी तो 4.5 पाउंड में नहीं देते कभी भी। अगर उनके वो तो उनकी बनी बनाई दवाएं हाँ जी। जो मार्केट स्टॉक हो में चुकी हैं जी जी उसकी कीमत लेते हैं 4.5। जी हम उसकी बजाय बहुत कम में दे देंगे, जी लेकिन अगर स्पेशल बनवाएं तो वो तो मेरे ख्याल से 100 पाउंड इससे भी ज़्यादा चार्ज करें। शायद। ऑर्डर देके देख लें, बेहतर जी, पता कर। उनके जवाब के पेश नज़र फिर बेहतर ये जी। कीमत मुकर्रर करेंगे। जी बेहतर जी।
उनसे कहें अगर हम आपको कोई मादा भेजें जी कि उसकी 1 लाख पोटेंसी की हमें शीशी बना के दे दो, जी तो आप उस पर कितनी कीमत वसूल करेंगे? जी बेहतर जी ठीक है। बेहतर जी अच्छा, फुल ऑटोमेटिक है, फुल जी ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक। और क्या बना सकते हैं इस पे आप? सब मशीनें नहीं है बस? जी यही है जी हाँ। पोटेंटाइजर के ऊपर पोटेंसी बनाते हैं। बहुत खुदा ताला के फजल से बहुत अहम और बहुत ही बुनियादी काम हुआ है। और जहाँ तक जमात की बचत है वो भी नाकाबिल यकीन हद तक बचत है, ऐसी कि जिसके मुतालिक बाहर कोई सोच भी नहीं सकता। यूरोप में अगर ये मशीनें आप बनवाएं तो लाखों पाउंड का खर्च है। क्यों जी? दुरुस्त? जी बिल्कुल जी सारी तहकीक हर तरफ से जो करवाई गई थी जी यहाँ से, और वो भी फिर निस्बतन नाकिस मशीनें बनाते हैं, फुल ऑटोमेटिक नहीं देते। और बड़े बड़े यहाँ के मशहूर नामवर कारखाने हैं जिनमें औरतें बैठे हाथ से काम कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनके लिए ऐसी कंपनी से मशीन बनवाना जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन कामों की माहिर हैं, और सिर्फ एक मशीन का ऑर्डर देना, ये बहुत ही महंगा काम है। क्योंकि एक मशीन के लिए ख़ास पुर्जे ढालना वगैरह वो कई मिलियन पाउंड उनके लग जाते हैं। तो इतना इनको वो वारा नहीं खाता जिसको कहते हैं। इसलिए इन्होंने आमतौर पर अपने लिए कम से कम ज़रूरी मशीन मुहैया की हुई है, और बाकी जगह ये हाथ से गुजारा, रिकॉर्ड रख के गुजारे करते हैं। तो हमारे लिए अल्लाह की फजल से ये सहूलत है कि हमारे अहमदी डॉक्टर, जिन्होंने ख़ुद अपनी मेहनत से, डॉक्टर दिलदार साहब, ये काम सोच सोच के अपने लिए तजवीज़ किया, फिर उसके तजुर्बे किए, फिर पुर्जे नए घड़ने और ढालने की बजाय मार्केट में जंक यार्ड्स की जाए लिए, और अपने मतलब का जो पुर्जा मिल गया उसके मुताबिक बाकी हिस्सा भी डिज़ाइन के मुताबिक ही कर लिया। तो बहुत इंजीनियस तरीक था, जिसके नतीजे में वो मशीन जो 1 लाख पाउंड में आ सकती थी वो 1 लाख रुपए में मिल गई है। जी इतनी बनती है, इससे भी कम है जी। सारी जी अब सारी बातें बतानी है? नहीं ये कह सकते हैं इससे भी कम, इन मानों में कि जितना खर्च मार्केट्स पे उठना था उसके 7वें हिस्से में अल्लाह ताला के फजल से हमें अपना यहाँ कारखाना कायम करने की तौफीक मिल गई है, और तमाम कानूनी तकाज़े पूरी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लाइसेंस मिल गया है हमारी होम्योपैथिक एसोसिएशन को, और अब हम मार्केट कर सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। किसी किस्म का भी कोई ख़तरा एतराज़ का नहीं है, और सिर्फ एक लाजिम है कि वो जो एहतियातें और सफाई के तकाज़े हैं उनको हम बड़ी सख्ती से, उन पर हम बड़ी सख्ती से कारबंद रहे हैं। क्यों जी? ठीक है ना? अब अपने हिस्से की जो जगह है उसको सेट करें माशाल्लाह। जी बेहतर जी। चौधरी इजाज साहब से मैंने बात की जी। इजाज साहब तो बेचारे बीमार पड़े हैं, उनको भी जवाब में याद रखना चाहिए। आप लोगों ने बीमार किया हुआ उनको, गलत दवाइयाँ दे दे के सत्यानाश किया हुआ। उनकी बेटी ने दी थी। वो शुक्र है कि मैंने पूछ लिया फरीना से, कल की बात है, परसों की यहाँ गुलाम क्लास में, और वो फिर पता लगा तो काफ़ी बीमार हो गए, और हमारे बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने उनका कुछ का कुछ बना दिया। फरीना ने खुद इलाज किया थी। मेरे पास आई थी ये नहीं मुझे बताया। नहीं, फरीना मेरे पास आई थी। फरीना कह रही थी, हम यहाँ बात सबके सामने रही है, फरीना कहती थी कि अब्बा जान का असल इलाज बोर्ड हमारा कर रहा है होम्योपैथिक, उसमें उसका भी मशवरा होगा जरूर, लेकिन बोर्ड के अप्रूवल से हुआ है। ये नहीं मानेंगे आप। अच्छा, बहरहाल आज मैंने फ़ोन पे उनका फ़ोन आया था मुझे, अल्लाह के फजल से अब वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। वो सारी छाती में जो दर्द फैल गई थी वो अब सिमट के एक नुक्ते पे मरकूज हो गई जहाँ वो पहले शुरू हुई थी, और खांसी के दौरे पहले से बहुत कम, दौरों की शिद्दत पहले से बहुत कम,
और आवाज़ में काफ़ी सुकून नज़र आ रहा था। तो वो जब ठीक हो जाएंगे फिर ये काम शुरू होगा, इसलिए उनकी तरफ खास तवज्जो दें, अच्छा जी, खास तौर पर बेहतर जी, ये तवज्जो दें कि उनका इलाज ना खुद करें। कोई और खुद ना करे। नहीं मेरे से पूछ रखें, ठीक है। हाँ बेहतर। चलो ये शुरू कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। यार ये क्या पकड़ा दिया है? हैं? शुरू करना है। यहाँ से आपने तो नंबर बहुत से जो रखे हुए थे जो बाकी थे, ये हो चुका है। ये दोबारा टाइप करवाया आपने? नहीं, वही है। इसी का बाकी हिस्सा? इसी का बाकी। ये खत्म थी लिस्ट है? अच्छा, और इसके अलावा बाकी इसके अलावा बाकी ये हैं, ठीक है। ये 15 के बाद 41 नंबर है, 41 के बाद 49 है, 49 के बाद 54 है, नंबरिंग गलत है। उसके बाद फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45 है। नंबरिंग गलत है, उसमें से निकाल के उसकी फोटो नहीं काफी गलत है। गलत नहीं, हर एक में ये तौर पर गलत है। अब ठीक हो जाएगा। ये बाहर ये पढ़ने वाली है सारी। जी जी हैं? जी। डॉक्टर फोबिस्टर जो कार्सिनोसिन की तशखीस के लिए इलामतें पेश करते हैं कि अगर ये इलामतें इस किस्म की हों या इस किस्म के मरीजों के का पस मंज़र हो तो उसमें कार्सिनोसिन ज़रूर देनी चाहिए। ये तो पढ़ के सुना चुका हूँ मैं। एंड इसका एंड आखिरी। अच्छा अच्छा। The appearance of the patient, moles, blue sclerosis or pale cafe-au-lait complexion. cafe-au-lait पता है क्या होती है? क्या? दूध वाली कॉफी। हाँ ठीक है, मगर वो पता नहीं कितने दूध वाली। ये ज्यादा वाली पेल लिखा हुआ है। हम जो काफी दूध पीते हैं दूध वाली या क्रीम वाली, वो काफी ब्राउन होती है, गहरी ब्राउन, उसको पेल नहीं कह सकते। ये अमेरिका में पेल काफी पीते होंगे मुमकिन है। हाँ? यहाँ ना इंग्लैंड में, हम सॉरी अफ्रीका। और जो कॉन्टिनेंटल्स हैं वो कहते हैं अंग्रेजों को कॉफ़ी नहीं आती, और अंग्रेज उन पे हंसते हैं उनको चाय नहीं बनानी आती। और जो चाय ये पेश करते हैं कि ये चाय है, वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है। और यूरोप का अंदाजा करें चाय क्या होती होगी। पतला पानी, उसका थोड़ा सा रंग बदलता है, यानी इतना सिर्फ रंग बदलता है कि उसे वुजू नहीं हो सकता। बाकी सब वही है। अच्छा जी, अब चलें रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज। यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से पढ़ना है ना आज? ठीक है। ट्यूबरकुलिन, मेडोराइनम, सीपिया, सिफिलिनम, नेटोम्योर, कैलकेरिया फॉस, DYS क्या चीज़ है? डिसेंट्री की? डाइसेंट्री को जी। अच्छा अच्छा, डिसेंट्री को, जी ठीक है। और लाइकोपोडियम, फास्फोरस, सोराइनम, आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक आयोडाइड, पेस्टिल्ला, सल्फर, ये दवाएं इनके नज़दीक ख़ास अहमियत रखती हैं कैंसर में। मगर इन दवाओं के नाम सुनने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक इनके कैंसर से ताल्लुकात की तफसील बयान ना की जाए। वो कुछ मैं बयान कर चुका हूँ, कुछ आगे बयान करूँगा। एक दवा में लिखी है स्क्रीनम। स्क्रीनम बर्नेट ने बनाई थी, और कार्सिनोसिन क्या फिक्र है? ऊपर नाम लिखा है, समझ नहीं आई। ऊपर उन्वान है स्क्रीनम और सिरिनम, स्क्रीनम ही होगा।
Burnett was one of the first homeopaths to use carcinosin to any extent, and he was followed by Clark. तो ऊपर स्क्रीनम है, यहाँ कार्सिनोसिन आ गया है, बाद में फिर वाजे कराएगा स्क्रीनम का। मेरे ख्याल आगे चल के जिक्र। अच्छा, apart from carcinosin, one of his, ठीक है, apart from carcinosin, one of his favorite remedies was scrinum or durum, prepared from a scirrhus carcinoma. कहता है कि सबसे पहले बर्नेट ने कार्सिनोसिन का इस्तेमाल किया है जो कैंसर के मवाद से तैयार की गई, और उसके बाद क्लार्क ने, जिसका मटीरियल मेडिका यहाँ मशहूर है, सुर्ख रंग की किताब जिल्द में आता है, डॉक्टर क्लार्क, उसने भी इसको इस्तेमाल किया है। इसकी एक किस्म जो उसकी फेवरेट थी बर्नेट की, वो स्क्रीनम है, या उसको ड्यूरम भी कहा जाता है। ये कार्सिनोमा के खून से बनाई जाती है, जो उसके ऊपर झिल्ली आ जाए, जो खून जो भी कहें आप उसको। इट्स कीनोट वाज ए वायलेंट फीलिंग ऑफ हॉलोनेस एट द अम्बिलिकस। इसके लिए उसने ख़ास इलामत ये मुकर्रर कर रखी थी कि अगर नाफ के नीचे खला का एहसास हो और खाली खाली जगह महसूस हो, तो वो इसको इस दवा के लिए काफ़ी इलामत समझता था, और इससे वो कहता है कि मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। बर्नेट का दावा ये था कि उसने बहुत से मरीज, और असल में ये दवा जो है वो इसमें लिखा नहीं इसने गलती से, जो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ी है उससे पता चलता है कि ये औरतों के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो इस्तेमाल करता था, और उसमें नाफ के नीचे जो खला का एहसास है उससे पता चलता है कि यूट्रस में उस कैंसर का असर हुआ है। पहले हो सकता है वहाँ से शुरू हुआ हो और फिर वो मुंतकिल हो गया हो ब्रेस्ट की तरफ। तो अम्बिलिकस के नीचे यूट्रस के कैंसर में खला का एहसास, ये बुनियादी बात है। और दूसरा इम्कान है कि वहाँ ना हो और लिम्फेटिक ग्लैंड्स की चेन के जरिए यहाँ कोई असर पड़ता हो। ये आप बता सकते हैं क्या ये मुमकिन है? हुजूर ज़्यादातर ये नहीं, डायरेक्ट ताल्लुक यहाँ नहीं है। नहीं है ब्रेस्ट का, लिम्स का, नाफ के नीचे जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यूट्रस का हो सकता है, वो नाफ ही तो अटैच होती है उसके साथ। एक अर्ज मैं कर सकता हूँ, यहाँ वो स्किरस कार्सिनोमा जहाँ ये लिखते हैं, हाँ। ये अर्बन जरूरी नहीं कि खून हो, ये जो उसका फाइब्रस टिश्यू ब्रेस्ट में होता है उससे जो कार्सिनोमा निकलता है उसको स्किरस कार्सिनोमा कहते हैं। नहीं, स्किरस कार्सिनोमा, तो ये स्किरस ये लफ्ज नहीं है इसके। जी, उसने बनाया था जो। हाँ वो ठीक है, जी जरूर, तैयारी के मुतालिक। जी जरूर। It was prepared from a serous carcinoma। अंदर से निकाल के, तो ये खून नहीं है बल्कि उसका फाइबर है। जी, उसी उस फाइबर से जो कार्सिनोमा बनता है। जी जी, उसी मैं समझ गया। अच्छा ये आपने वजाहत कर दी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई थी, मगर उससे अमलन आपकी तालीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो जिस चीज़ से भी बनता है हमें तो ये पता है कि उसका नाम स्क्रीनम है या कार्सिनोसिन है। अच्छा, अब ये कहता है इसके बाद कि ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट विद दिस रेमेडी ही आल्सो क्योर्ड अ ग्रोस इंड्यूरेटेड सर्वाइकल एडिनोपैथी, केसेस ऑफ हेमरेज एंड वेरिसेस ऑफ द लोअर लिम्स। आए डॉक्टर साहब, सर्वाइकल तो गर्दन वो तो है, मगर आगे एडिनोपैथी। जी, एडिनो जहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है मगर सर्वाइकल से मुराद जरूरी नहीं कि वो गर्दन हो। नहीं, वो नहीं, अगर ट्यूमर की नहीं, अगर और यूट्रिन ट्यूमर की बात हो रही है तो वहाँ भी ये सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक है जी, क्यों गर्दन होती है उसकी, गर्दन होती है, मगर आप हाथ यहाँ मार रहे हैं, यहाँ गर्दन वो यहाँ की भी हो सकती है, पेट के अंदर जहाँ आप हाथ नहीं मार सकते। जहाँ जो ये एडिनोपैथी कहा ना उसने, तो कहाँ वहाँ जो ये आमतौर पे इस जो है हमारे ग्लैंड एडिनॉइड्स के साथ ताल्लुक है इसका। एडिनो जहाँ भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है ग्लैंड्स,
ठीक है और पैथी का मतलब पैथोलॉजी, ठीक है बिल्कुल ठीक ग्लैंड्स है की जो बीमारी है, जी। सर्वाइकल ग्लैंड्स की जो बीमारी है उसमें यूज़ किया उन्होंने। हाँ तो वहाँ भी वहाँ ग्लैंड नहीं होते नहीं हुजूर, वो यूट्रस के उसमें उसमें सर्वाइकल कैंसर वो और है, उसमें नहीं, एडिनोपैथी नहीं हम कहते। ठीक है, इसलिए यकीन गर्दन की बात हो रही जी है। हुजूर। चलें जी। केसेस ऑफ हेमरेज एंड वेरिसेस ऑफ लोअर लिम्स, इसमें इसने इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारे एक मरीज था जिसके वेरिसेस का केस था टांगों में, और खून भी बंद नहीं होता था, दर्द भी बंद नहीं होती थी, ऑपरेशन हो चुका था। तो अल्लाह ताला के फजल से जब मैंने उसकी ट्रीटमेंट की बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे आके दिखा गया है, वेरिकोज वेन्स उसकी साफ हो गई। उसको और दवाओं के अलावा मैंने इस्कुलस भी दी थी। इस्कुलस भी बड़ी अच्छी दवा है वेरिकोस में। पुरानी वेन्स जो फूल कर ठहर ही जाएं उस जगह जाके, ना आगे बढ़े ना पीछे हटें, और उससे बड़ा उनको देख के गुस्सा सा आता है कि कुछ तो करें अपना। लगता है पीठ बनेगी, तैयार होंगी, फटेंगी या वापस ही मुड़ेंगी, वापस मुड़ेंगी, वो वहीं ठहर जाती हैं लटकी हुई बीच में। तो उसके इलाज में ये दी थी मैंने इस्कुलस। इसकी उसकी खास अलामत है ये, वो खुदा के फजल से उसको बहुत फ़ायदा पहुंचा। मामूली सा रह गया था आखिर पे, और दवा जारी है। कहता है one patient expelled a considerable number of threadworms after the administration of screenum. ये मैं पहले आपको बता नहीं चुका? जी पहले हो चुका। हाँ, तो दोबारा भी पढ़ा रहे हैं ये सारी बात। लेकिन ये तफसील से जरा हो जाएगी बात, दोबारा पहले मैंने मुख्तसर बताया था। मुख्तसर। ये कहता है थ्रेडवर्म्स को निकालने में स्क्रीनम ने बहुत नुमाया काम किया है। और स्क्रीनम का थ्रेडवर्म से क्या ताल्लुक़ है, थ्रेडवर्म्स का कैंसर से क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें सिर्फ सवाल हैं, इनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। हो सकता है कि मैदे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं कैंसर के नतीजे में उनके फेल में भी ख़राबी वाक़ हो जाती हो, और पूरी तरह हरकत न करती हों अंतड़ियाँ, ऐसा बदबूदार मवाद जमा रहता हो जो ख़ुद ही जरासीम को खींचता है, जरासीम को भी और वर्म्स को भी। लेकिन एक बात याद रख लें कि थ्रेड वर्म्स में आइंदा इसको इस्तेमाल करके देखें। जहाँ साइना का मशवरा दिया जाता है, मगर मेरे तजुर्बे में साइना ने कम ही काम किया है। नाम बहुत मशहूर है, नाक की खुजली, मुंह के इर्द गिर्द पेल हो जाना, ये इलामतें तो ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन साइना से डॉक्टर बशार साहब ने कोयटे में मरीज ठीक किए हों तो अलग बात है। रब्बा में मुझसे नहीं हुए इतने, मैं फिर बाद दूसरी दवाएँ इस्तेमाल करता रहा हूँ। सबडिल्ला भी बड़ी इफेक्टिव है उसमें, अगर सही आपको आप बताने लगे, आपके मुंह पे आ गई थी बात कोयटे वाली, कोई क्या थी बता दें। इसमें और भी ट्यूक्रीम भी है। ट्यूक्रीम तो मैं देता रहूँ, तो मैं बता भी चुका हूँ। नहीं, आप सबाइना के ऊपर ना साइना के ऊपर मेरी बात पे थोड़ा सा अपने रद्द-ए-अमल दिखाया था। आपका तजुर्बा मुख्तलिफ है जी हुजूर, उसमें मिलाकर और दवाइयाँ दें तो फिर। हाँ बताएं कौन कौन सी। उसमें इस सेंटोनाइन फौरन का चेहरा जो है माशाल्लाह बड़ा सच्चा है, हल्का सा इशारा दे जाता है कि नहीं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं। आप बताएं। सेंटोनाइन है, उसे मिलाकर दें। सेंटोनाइन जी। और ट्यूक्रीम है ट्यूक्रियम, और भी यानी अकेले साइना से अकेले काम नहीं करती। आपने कोई खास फायदा नहीं उठाया कभी भी, अकेले नहीं। अकेले, मगर जब इनके साथ मिला दें ट्यूक्रियम के साथ जी। और सेंटोनाइन के साथ, तो इससे फायदा होता हाँ, तो सेंटोनाइन क्या चीज़ है? पता है? है। काली किताब में देखने लिखी होगी, ये आप देख लें डॉक्टर साहब, नहीं आप ही देख लें। अच्छा जी, और क्या कहता है ये? इन ऑब्स्टिनेट केसेस ऑफ दिस काइंड वेयर साइना और ट्यूक्रियम हैड नो इफेक्ट, ये स्क्रीनम की जो प्रिपरेशन इसने की थी वो कहता है बहुत ही मौसर साबित हुई है।
تو یہ چمونے لڑنے کا تو عام کیس چلتا ہے بچوں والوں کے گھر میں، کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ چمونے کی بیماری خاص طور پر جب بچے میٹھا کھا لیں تو پھر باہر نکلتے ہیں چمونے اور قیامت مچا دیتے ہیں ارد گرد. عجیب و غریب مخلوق ہے یہ انڈے دینے کے لیے باہر آتے ہیں اور باہر انڈے دے کر پھر واپس بھاگ جاتے ہیں اور میٹھے سے نفرت کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میٹھے سے چمونے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ بچہ جو میٹھا کھاتا ہے اس کے اندر کی بیماری میٹھے کی مدد سے ظاہر ہو جاتی ہے. چمونے میٹھے سے نفرت کے نتیجے میں باہر دوڑتے ہیں. ہاں لکھا ہوا ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، یہ آسانی سے پڑھ لیں گے. حضور لکھا ہوا ہے سینٹونن اور سینٹونائنم is the active principle of Centonica, the unexpanded flower head of Artemisia. اچھا آرٹیمیزیا ہے یہ میریٹیما، اور اسی کے آگے لکھا ہے سائنا، اسی کی کوئی وہ ہے، اسی سے غالباً آرٹیمیزیا کی قسم ہی ہے سائنا. جی unexpanded flower heads of Artemisia maritima اور maritima سائنا. آرٹیمیسیا جو ہے اس کو تو ہم مرگی کے مریضوں کو مستقل عموماً دیتے ہیں اور باقی دواؤں کے ساتھ یہ مدر ٹنکچر چند قطرے کو دیتے ہیں، تو یہ بہت مفید دوا ہے. اور بڑے لمبے تجربے میں میں نے دیکھا کہ ایک قسم کی ٹکسالی کی دوا بن گئی ہے. اپنی ذات میں کیوریٹو نہیں ہے مگر بہت مددگار ہوتی ہے باقی دواؤں کے ساتھ دی جائے تو. اس کا نام سائنا ہی ہے، سائنا سے ملتی جلتی ہے، اسی اسی کے پودے کی ایک کسی حصے سے نکالی جاتی ہے. آگے لکھا ہوا حضور اسی کا it is unquestioned value, it is of unquestioned value in the treatment of worm diseases as gastrointestinal irritation, itching of nose, رائٹ وہی لائن ہے. اور restless sleep, twitching of muscles, ٹھیک ہے Ascaris lumbricoides وہی جو and thread worms, round worms بھی اس میں آگے but not tapeworms, ناٹ ٹیپ. not tapeworms. ٹھیک ہے. تو round worms, thread worms لیکن ہے. tapeworm میں نہیں. ہاں ٹیپ فارم اور راؤنڈ ورم میں کیا فرق ہے؟ ان کی حضور وہی شکل ہی وہ صرف شکل تو ہے ہی ان کے ایک ٹیپ کی طرح اور ایک گول گول، جی وہ لیکن ان کی لمبائی چوڑائی اور یہ میرے ذہن میں گودیاں پوری نہیں ہے کوئی نہیں. اس وقت نہیں. یہ انفیکشن ڈیزیز بہت پرانی ٹھیک ہے پڑی ہوئی. تو یہ بھی دیکھ لینا، چیک کر لینا کل کی وہ کیا ہے ٹیپ اور اس میں فرق کیا ہے. اور جو سب سے خطرناک چیز وہ ہک ورمز ہیں، وہ تو پیچھے نہیں چھوڑتے، چمٹ جاتے ہیں اور نسلوں بعد نسلیں جہاں ایک دفعہ پڑ جائیں وہاں وہ چمٹے رہتے ہیں. اور ننگے پاؤں لوگ جو پھرتے ہیں پہاڑوں پر، وہ چونکہ پہاڑی لوگوں میں عموماً یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ ان کے ذریعے ایڑیوں اور تلووں سے داخل ہوتے ہیں اندر، اور اندر جا کے پھر انکیوبیٹ کر کے لنگ سے پھر معدے میں آ جاتے ہیں، پھر انتڑیوں میں اتر کے پھر ہمیشہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے ورمز کے اوپر بھی ہمیں کبھی خاص طور پر سمجھانا چاہیے کیا کیا طریقہ علاج ہے. یہاں چونکہ کم مریض دکھائی دیتے ہیں اس لیے خیال نہیں آتا. پاکستان میں تو اور بنگلہ دیش والے میں تو بکثر ہوتے ہوں گے. اچھا اور اب کون ہے اس کا؟ ہاں اس کا ایک آخری حصہ یہ ہے کہ کلارک whose notes provide this information obtained good results with screenum 200. اب کلارک کا 200 استعمال کرنا ایک پکی سند ہے کہ 200 ہی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی پوٹینسیاں لکھتا ہے. اکثر کلارک کا رجحان نچلی پوٹینسیوں کی طرف ہے. جب وہ اونچی چھلانگ مارتا ہے تو اس کا مطلب بڑی پکی سند ہے کہ چھوٹی سے اس کو فائدہ نہیں ہوا اور اس نے زیادہ اونچی استعمال کیا تو فائدہ ہوا. کارسینوما کے متعلق یہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے کہ اس کا اپنا کینٹ کا کہ وہ
उसने कहा था कि जल्दी बीमारियों से या सोराइसिस से इसका ताल्लुक है। माइक्रोकॉक्सिनम एंड ओसिलोकॉक्सिनम ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। रेडियम बता चुका हूँ मैं, हाँ, स्पेशली कैंसर के मतलब बता चुका हूँ ना। और 34 नंबर के बाद 33 नंबर भी आ गया है। नंबरिंग के साथ आपने अच्छा मामला किया, इससे कैंसर निजाम बिगाड़ देता ना, नंबरिंग को कैंसर करके दिखा दिया। The proving that Dieffenbach have precisionized its use. Radium room of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 18 लाख रेडियम रूम तो हो नहीं सकता। अच्छा, वो कमरा, वो सेट है जहाँ रेडियोथेरेपी की जाती है और जिसकी ताकत 18 लाख रेडियो एक्टिविटी थी, वहाँ की फिजा से गालिबन उन्होंने लिया है। फाउंड इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म एंड गाउट। उस कमरे में शीशी एक रख दी होगी कुछ अर्से के लिए ताकि वो अच्छी तरह वो रेडियो एक्टिव हो चुकी हो, जितनी भी हो सकती है ऐसे माहौल में। severe aching pains all over with restlessness, chronic rheumatic arthritis, tired and irritable, vertigo, occipital and vertex pain। अच्छा, इसमें आप ये देख लें कि जो ज़ायद फ़ायदे हैं उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए कि आर्थराइटिक पेन्स, आर्थराइटिस के नतीजे में जो पेन्स हैं, बाद मरीजों को तो बिल्कुल यानी बेकार कर देती हैं, बिल्कुल इमोबाइल कर देती हैं। दरमियानी उम्र की औरतें बेचारी बिस्तर से लग जाती हैं, ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है मेरे ख्याल में। वो बच्चा वगैरह की वजह से जो उन पर स्ट्रेस आते हैं, शायद उसकी वजह हो। उसमें इसको भी याद रखना चाहिए कि रेडियम के मतलब कहता है कि आर्थराइटिक पेन्स जो क्रॉनिक हो जाएं उनमें ये मुफीद है। रूमेटॉइड का है इसमें, रूमेटॉइड में खास नहीं, क्रोनिक आर्थराइटिक कहा है, रूमेटिक, आई एम सॉरी, रूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं आप इसको, रूमेटॉइड जी, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ, रूमेटॉइड। इसमें रूमेटिक आर्थराइटिस का लफ्ज इस्तेमाल होता है होम्योपैथिक में अक्सर, अच्छा, लेकिन रूमेटॉइड भी मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी इस्तेमाल होता है। टायर्ड एंड इरिटेबल, वो टाइगो हो गया है। अवर्शन टू स्वीट्स, बेल्चिंग ऑफ गैस, अवर्शन टू स्वीट्स है जो ये कम लोगों में मिलती है। आमतौर पर मीठा लोगों को पसंद ही है, मगर नापसंद भी हो तो दरमियाना पसंद तो रहता ही है। अगर अवर्शन हो तो ये एक अच्छी इलामत है जो रेडियम की तरफ इंसानी तवज्जो खींच सकती है। बेल्चिंग ऑफ गैस तो कॉमन है, इतनी कदर मुश्तरक है इस वक्त ना, इतनी आम हो गई है कि इसको अलामत के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। मेरे पास तो जितने भी होम्योपैथिक मरीज आते हैं, अक्सर उनमें से मज़ीद दूसरी बातों के अलावा हवा की बात करते हैं। यहाँ का मेरा ख्याल पानी ऐसा है, या दुनिया में हर जगह पानी का मयार गिर गया होगा या खुराक का, कि हवा पैदा होने लग गई है बहुत। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब होम्योपैथिक इलाज आप करते रहें तो रफ्ता रफ्ता हवा का रुझान कम होता जाता है और आम सेहत के साथ उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम, ये पहले मुझे याद है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको जी, हो चुकी है, लेकिन इसने नई बात जो की नई बात है क्या? मुझे तो कोई नई बात नहीं दिखाई दी। सुल्तान एक ही लाइन है जी, कि औरतों का जो इसका रहम का कैंसर है उसमें आरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम मुफीद है। ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं। जी हो चुकी है, हाँ, हो चुकी है, हो चुकी है ना। अच्छा, दूसरी है खंडुरांगो, ये भी बता चुका हूँ। मैदे के कैंसर में
तो छोटी ताकत में दी जाती है, और अगर शुरू में दी जाए तो फिर अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। अगर ज़रा देर में दी जाए तो आराम पहुंचाती है, मगर मरीज को शफा नहीं दे सकती। और एपिथेलियल कैंसर लोअर आईलिड्स पर लेफ्ट साइड ऑफ नोज हो, उसमें भी कांडूरांगों की तारीफ आई है। ये हिस्सा है जो खास काबिल गौर है। एपिथेलियल कैंसर लोअर आईलिड और बाएं नाक की तरफ, नाक के बाएं हिस्से की तरफ, इसका मतलब है कि वो इसको क्या कहते हैं, ये जो आंख का ये हिस्सा है अंदरूनी, अंग्रेजी में तो हम कैंथस कहते हैं जी। हाँ कैंथस कैंथस, जी, जो ये हिस्सा है, जी। और इस पल्ले हिस्से को क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं मीडियल कैंथस, लेटरल कैंथस, जो दरमियान में मीडियल हाँ। MEDIAL तो मीडियल कैंथस जी, की तरफ बायां कान पे नाक, जो निचले लिड का कैंसर है, ठीक उसमें ये कहते हैं इस खास मकाम के लिए ठीक। ये कांडूरांगो मुफीद साबित हुआ है। काफ़ी गुठली सी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग उसकी, और सख्त होती है, और साथ ही मुंह के किनारों पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं जो काफ़ी तकलीफदेह होते हैं। बाद लोगों को यही बीमारी होती है मुंह के क्रैक्स की, और बाल बच्चों में मैंने देखी है कि बेचारों से बात भी नहीं की जाती, ज़रा बोलें तो किनारे फटने लग जाते हैं। और ये कैंसर से ज़रूरी नहीं, मैदे की खराबी से इसका ताल्लुक है ज़्यादा। और चूँकि कांडूरांगो मैदे के कैंसर की दवा है, इसलिए जो असल इलामत का जोड़ है वो यहाँ का है, और ये जायद है उसके अलावा। फ्लोरिक एसिड के मतलब लिखा है वेरिकोस वेन्स एंड पेनफुल अल्सर्स ऑन लेग्स विथ कोपियस डिस्चार्ज, वार्मथ और कोल्ड। वार्म से गर्मी से फायदा और सर्दी से मर्ज में इजाफा। फ्लोरिक एसिड वेन्स के लिए बहुत मुफीद दवा है। मैं आपको पहले फ्लोरिक एसिड लेक्चर में समझा चुका हूँ ये बात, मगर कैंसर का गालबन मैंने जिक्र नहीं किया था, ये कैंसर में भी मुफीद बताई गई है। गैलियम एस्पिरिन, फजूल ही है तो छोड़े पड़े इसको। गैलियम मॉडिफाई करने के लिए गैलियम एस्पिरिन, इतना कहाँ आप लोगों ने याद रखना है, और अगर मॉडिफाई सिर्फ करना है तो फ़ायदा क्या। और 20 ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंक्चर, फजूल झगड़े हैं ये। हेपासल्फ, corrosive pain in cancerous ulcers, bleeding at the slightest touch, yellow skin and complexion, ये अच्छी दवा है हेपासल्फ। हेपासल्फ दर्द के बढ़े हुए एहसास में बहुत मुफीद है। जब ज़ख्मों में या फटाव पड़ जाए कहीं, जितनी तकलीफ दिखाई देती है उससे ज़्यादा शिद्दत की दर्द हो, और यूँ लगे जैसे वो कोई तेज़ाब खा रहा है उन किनारों को जहाँ तकलीफ ज़ाहिर होती है, उस सूरत में हेपासल्फ बहुत अहम दवा है। और अगर इसकी इलामतें मिले तो कैंसर से निपटने में काफ़ी हो जाती है। जल्द इसकी कहते हैं ना, जल्द की रंगत कम जर्दी मायर हो जाती है। और चेहरे के ना होंठों के इर्द गिर्द जो इरप्शंस हैं या फटना है, वो अगर बढ़ते बढ़ते कैंसर की तरफ मायल हो जाएं तो उसकी रोकथाम के लिए हेपासल्फ बहुत अहम काम करती है। और अगर थोड़ा खाने पर भी मैदे पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाए
تو اس وقت یہ مشورہ ہے کہ ہیپرسل شروع کر دیا جائے کیونکہ یہ دباؤ کئی وجہ سے ہو جاتا ہے، مگر اگر کینسرس علامت ہو، کینسر کی علامت ہو، تو ہیپرسلف اس سٹیج پہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. انہی خصوصی علامات کے ساتھ یہ میموری کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی چھاتی کے کینسر کو بھی. کوریٹلس ہورائڈس، کینسر آف ٹنگ ود گریٹ ہیموریج، پیوٹرڈ سو ماؤتھ ود بلڈی سیلیویشن. یہ جو کروٹیلس ہے یہ ایک سانپ ہے جس کے زہر سے یہ دوا جو بنتی ہے، کینسر جس کے زہر سے جو دوا بنتی ہے اس کو کروٹیلس کہتے ہیں. اس میں جو خاص علامتیں ہیں، ایک تو سیاہی مائل خون کے اخراجات اور گلنے سڑنے کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ، اور ویریکوز وینز بھی اس سے ہو جاتی ہیں. اور فنگائڈ سارکوما جو فنگس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا فنگس اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ فنگس کی طرح ابھرتا ہے. ہاں وہی، یعنی فنگس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، صرف اس کی شکل ظاہر کرنے کی خاطر. جی ٹھیک ہے. کالی فلاور بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، وہی بات ہے. کالی فلاور ایکسکریسنسز ود مچ ٹینڈنسی ٹو ہیمریجز. کروٹیلس کو بھی ان باتوں میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. کیوپرم میٹ کے متعلق لکھا ہے بشار صاحب، اب یہ وہ محاورہ جو آپ کے ساتھ کوئی دنیا میں نہیں سمجھ سکتا. ہاں، کیوپرم میں لکھا ہوا ہے کہ ود ان الیسٹک کاف لائک اسکن. ایسی کھانسی کی طرح کی جھلی. کاف لائک اسکن کیا ہوتی ہے؟ کھانسی جیسی شکل کی جھلی. رف لائک تو نہیں ہو سکتا. کافی ہوا ہو، یہ اندازے ہیں نا سارے، اصل پڑھ ہی لیں بہتر ہے. آپ کے ٹائپسٹ نے جو غلطی کی ہے وہ کتاب میں یہ وہ ہندوستان کی چھپی کتاب ہے، ادھر وہاں پھر ہو سکتا ہے، وہاں ہو جاتی ہیں ایسی باتیں، عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں. اب پھر اس کا معلوم کرنے کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا. لیکن اگر کوئی کھانسی جیسی جلد دیکھ لے تو کیوپرم کو یاد رکھے اور ہمیں بھی اطلاع کرے. اسکینٹی کروڈنگ ڈسچارجز. کیوپرم کو اس میں کینسر میں نہ میں نے کبھی استعمال کیا، نہ کبھی اس کا دماغ میں بھی آیا ہے کہ کیوپرم کینسر میں کام کر سکتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ کا تجربہ ہے؟ نہیں نا. اور پھر یہ اسکن بھی نہیں ملنی ہمیں، فائدہ کو چھوڑیں اس کو اوپر. کیوریا malignant ulcers in various parts of the body, cancer of the cheeks, healing over very slowly and passing easily into gangrene. Funnel-shaped ulcers with corroding itchous fetid discharge, smarting. یہ عورتوں کی
जो सुराही है यूट्रस की उसके कैंसर की बात कर रहा है और कहता है थाइज में भी वो स्मार्टिंग पेन जो कभी कभी जैसे डंग मारता हो कुछ इस किस्म की दर्द उतरती है और खून का अखराज स्याही माइल। ये दवा है इलैप्स। इलैप्स भी एक सांप का नाम है जो कोरल स्नेक भी कहलाता है। कोरल स्नेक है, ये उसके मादे से बनी हुई दवा है, नहीं उसके जहरीले मादे से। और डार्कल ब्लड अमूमन उन सांपों में जहाँ खून के अखराजात होते हैं ये मिलता है। इसमें जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है इलैप्स के कैंसर में, खून का स्याही माइल क्लॉटेड, और उसके साथ खारिश पैदा करता है, यानी टांगों वगैरह में फ्लो के अंदर ही उसके खारिश का मादा पाया जाता है। तो बाज़ दफ़ा बाज़ मरीजों को कैंसर ना भी हो तो रानों के इर्द गिर्द की खारिश बड़ी पुरानी और बहुत तकलीफ दे हो जाती है, उसमें भी हमें इसको ट्राई करके इस्तेमाल करके देखना चाहिए। यूफोबियम। यूफोबियम तो ज़्यादातर ऐसे अल्सर्स के लिए काम आती है जिनमें अल्सर्स पुराने हों और पके ना और स्याही माइल होने शुरू हो जाए रफ्ता रफ्ता। इन उम्र के साथ साथ उनके रंग में स्याही पैदा हो जाए मगर वो रिस्पॉन्ड ना करें, ना असल जगह पर खड़े रहें, ना पकें। तो ये उससे फ़र्क है वो जो आपको इश्कुलस की अलामत बताई थी। इश्कुलस में पकने की सी शक्ल मिलती जुलती थोड़ी सी, जैसे फोड़े में पीप बन रही हो तो उससे पहले उसका रंग होता है, वहाँ आकर रंगत ठहर जाती है और मज़ीद नहीं बदलती। लेकिन इसमें जो यूफोर्बियम का मरीज़ है उसमें स्याही माइल रंगत होनी शुरू हो जाती है मगर फोड़ा या फुंसी पकते नहीं हैं। अल्सर्स के मतलब ख़ास तौर पर लिखा है। और उसके बाद फिर उस किताब का कमाल ये है कि वो कहता है स्वेलिंग लाइक ओल्ड चीज़। ओल्ड चीज़ की तरह स्वेलिंग कैसी होती है? वो स्मेलिंग लफ्ज़ है, डब्ल्यू उल्टा लिखा गया है। पुराने चीज़ की जो बू है ना वैसी चीज़ वैसी स्मेलिंग इनके इसमें से आती है, कैंसर में से बदबू। बालों को तो बहुत अच्छी लगती है वो, मुझे मुँह में पानी आ जाता है ऐसी बदबू सुन के। यहाँ जो असल चीज़ खाने वाले लोग हैं उनके चीज़ को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, वो बदबू पीछे नहीं छोड़ती। मुझे भी एक दफ़ा किसी ने कहा था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था ना, तो आम चीज़ जो है वो खाते देखा, उसने कहा वो माहिर फन था कोई। ये क्या चीज़ है, तुम जाओ बॉन्ड स्ट्रीट में, वहाँ चीज़ की दुकान है, और महंगा तो होगा लेकिन एक दफ़ा अच्छा चीज़ खा तो लो कभी दुनिया में। उनसे कहना कि जो आपका सबसे महंगा चीज़ है वो मुझे थोड़ा सा दे दें। उसने जब छीलना शुरू किया इतनी बदबू उठी है कि अब मुझे याद नहीं कि पैसे तो खैर मैंने सौदा दे दिए थे उसको, मैं उसको फेंकने के लिए मुझे दौड़ के बाहर जाना पड़ा था। बहुत खौफनाक है, मगर बाद लोग जिनको आदत पड़ जाए वो मज़े ले लेके खाते हैं उस बदबू को। अब एक और एक दिलचस्प है तजुर्बा लिखा हुआ है इसमें, मगर वो इग्नेशिया में आएगा, मैं वो आएगी उसकी बारे में फिर बताऊंगा।
हाइड्रेस्टिस जो दवा है ये कैंसर की दवा मशहूर है जिगर के कैंसर के लिए, और इसकी इलामतें ख़ास तौर पर ये हैं ये तो उसने बुनियादी इलामतें जो हाइड्रेस्टिस की थी, मुंह की कड़वाहट, ये दी नहीं हुई, और लेसदार बलगम का अखराज और मैदे का बाइल का रुझान, इसमें देखें हाइड्रेस्टिस की इलामतें क्या लिखी हुई हैं। इसने मुख्तलिफ किस्म के कैंसर जिक्र कर दिए हैं। अगर बगैर इलामतों के कैंसर का जिक्र किया जाए तो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेशुमार दवाएं हैं मुख्तलिफ कैंसरों में, उसमें हाइड्रेस्टिस को चुनने के लिए कोई वजह इम्तियाज नहीं है। जी, आपने ये जो लिखा है इसमें X especially on mucous membranes relaxing them and producing a thick yellowish ropey secretion. हाँ, रोपी, ये मुझे याद है। इसके अंदर थिक रोपी सिक्रीशन और येलो भी है, ये मेरे ध्यान में नहीं था उस वक्त। और दूसरे कड़वाहट मुंह की। The catarrh may be anywhere, throat, stomach, uterus, urethra. It is always characterized by this peculiar mucus discharge. Haidrestis is especially active in old, easily tired people, cachectic individuals with great debility. माउथ देखें ना, माउथ Mouth. Peppery taste. Peppery? जी. Peppery taste. Tongue white, swollen, large, flabby, slimy, shows imprint of teeth, ठीक, as in muck, ठीक है, as if scalded stomatitis. ठीक है। जुबान पेपरी लिखा हुआ है, जी। बाज़ जगह बिटर भी लिखा होता है, तो इसका मुंह का मज़ा बिटर हो जाता है, जुबान सफ़ेद और मरकरी की तरह जरा फूली हुई, और किनारों पे दांतों के निशान पड़ जाते हैं। ये असल इलामतें इसकी। ये मौजूद हों तो फिर स्टमक वगैरह हर किस्म के कैंसर में ये मुफीद हो सकती है, लेकिन शर्त एक ये भी है कि सलाइवा जर्दी माइल हो और लंबे धागों की सूरत में हो। और एक लिखने वाले ने ये लिखा है कि छोटी ताकत में हमने इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया है, यानी 3x में बहुत फ़ायदेमंद देखी है। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की 30 से कम, मगर अब जो होम्योपैथ हैं वो करके देख लें, हो सकता है मुफीद हो। हार्सिमस, ये कैंसर में मुझे नहीं याद कि कभी इस्तेमाल की हो, ये ख्याल भी इसका आया हो। और लिखा भी नहीं हुआ कैंसर, तो छुट्टी हुई। इग्नेशिया, इसका भी कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं और लिखा भी नहीं हुआ। यूट्रिन हेमरेजेस, ये आयोडम से है, लिया गया है, आयोडियम लिखा हुआ है, आयोडम भी इसको पढ़ा जाता है। यूट्रिन हेमरेजेस एट एवरी स्टूल with cutting in the abdomen and pains in the loins and smaller back, great weakness during menses, particularly in going upstairs. तो इसकी खास फिर क्या बनेगी अलामत? यूट्रिन हेमरेज एट एवरी स्टूल, कटिंग इन एब्डोमेन, ये यूट्रिन हेमरेज है, इसको अगर आप उस कमजोरी के साथ बांधें जो ऊपर चढ़ने से खुसूसन बढ़ती हो, तभी भी आयोडम की तस्वीर पूरी नहीं उभरेगी। आयोडम की जो ख़ास अलामत है वह है भूख का ज़्यादा होना और उसके बावजूद जिस्म का घुलना और गर्मी का एहसास।
मगर आयोडम जब बगैर कैंसर के काम करता हो तो उसमें कमजोरी नहीं हुआ करती, इसलिए ये फ़र्क है। एक आयोडम की अगर दूसरी अलामतें हों, भूख और गर्मी का एहसास और यूट्रस से खून का अखराज और कमजोरी, फिर ये तस्वीर मुकम्मल बनेगी आयोडम की। और आयोडम का जो छाती के कैंसर है उससे ये ताल्लुक़ है, मशहूर मारूफ ताल्लुक़ है, मगर ख़ास तौर पर उसको वेस्ट करने में बहुत काम करता है। घुलना, उसको घुला देना, यहाँ तक कि सिर्फ गुठलियाँ रह जाएं बाकी, और जो बाकी मस्कुलर सिस्टम है वो घुल कर बिल्कुल विदर अवे कर जाता है। वायलेंट वॉमिटिंग रिन्यूड बाय ईटिंग, कैनाइन हंगर, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दी हुई हैं इसने कि कैनाइन हंगर तो इसकी मशहूर है आयरन की, कि जिस तरह ऐसी भूख जो ख़त्म होने का नाम न ले, यानी उन जानवरों से मुशाबे भूख जैसे कुत्ते, भेड़िए वगैरह होते हैं। मगर वॉमिटिंग रिन्यूड बाय ईटिंग ये गालबन मैदे के कैंसर की में होता है, वरना आमतौर पर इसकी ज़ाती इलामतों में वॉमिटिंग शामिल नहीं है, यानी आयोडम की। इसमें अब वो आया है, उन्होंने निशान रखा है ख़ास एक, इफ़ यू प्लेस ए पीस ऑफ सिल्वर इनटू द माउथ ऑफ एन आयोडम पेशेंट इट विल स्मेल लाइक गार्लिक। समझे क्या तर्जुमा है इसका, बताएं। अगर चांदी का कोई टुकड़ा मुंह में रखें हाँ जी, तो वो लहसुन की बू देता उसके है। मुंह से लहसुन की बू इसकी बू, लहसुन की बू आने लग जाएगी, हैं? ये लगता नहीं, उसको लहसुन की बू आएगी। है। अच्छा उसको मरीज को ये बदलिए कि चांदी में से लहसुन की बू लग जाएगी। उसको अगर चांदी का टुकड़ा ज़ुबान पे लगाया जाए तो वो महसूस करता है कि लहसुन की बू आ रही है। ये ख़ास कोई रिएक्शन है, इसलिए इसको इस्तेमाल करके देखना चाहिए। बाकी फिर इंशाल्लाह ठीक है। अब मैंने कहा ये हो गया है यहाँ तक, डॉक्टर साहब इनको छुपा लें। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, हैं? इनको नहीं कर लें अलग। अब ये मवाद है जो हम इंशाल्लाह कल मेरा ख्याल ख़त्म कर लेंगे फिर, हैं? ओहो नहीं, कल तो हमारा वो दिन है कादियान के जलसे का। जी। कितने बजे शुरू होगा जलसा? 10 बजे का प्रोग्राम है। 10 बजे? जी ठीक है। जी। तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक अगर हो जी तो 1 घंटा मिल जाता है, जी। हैं? नमाज पे लेट होगी, क्यों? 12 पाँच से 1 मिनट लेट हो तक। नहीं, पहले नहीं देते हैं, जी बहुत छोड़ अच्छा। देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।